एवरीवन, वेलकम बैक। पहला एमसीक्यू है हमारे साथ एफएलपी नंबर 11 का। फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी। तो gaseous exchange हमें पता है that happens through the process of diffusion through a respiratory surface। अब respiratory surface जितना thin होगा उतनी ही diffusion आसान होगी, लेकिन ऐसी जनरल रूल ऑफ थंब आपकी किताब ने कहा है कि अच्छी डिफ्यूजन के लिए अगर रेस्पिरेटरी सरफेस 1 मिलीमीटर या उससे भी थिन हो तो डिफ्यूजन अच्छी तरह से होगी। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 2, the external features of the nose depends upon the cartilage and ethmoid bone। आपकी किताब का एक स्टेटमेंट है MCQ number 3, the trachea extends between the trachea और the windpipe से windpipe भी हम कहते हैं, this lies ventral to the esophagus and it extends from the cricoid cartilage to the carina। Cricoid cartilage आपके is a cartilage in your neck below the larynx, and carina is that part of the say vertebral column जहाँ पर or that part of the it's basically the place I think एक two vertebrae above sternum है, कुछ ऐसी कोई बात है, लेकिन खैर आप याद रखिए कि it extends between the cricoid cartilage and the carina। MCQ number 4, the laryngopharynx extends from the hyoid bone यानी neck bone to laryngopharynx is the last part of the pharynx। pharynx के हमारे साथ तीन parts थे, nasopharynx, oropharynx और laryngopharynx। तो laryngopharynx extends from the hyoid bone to the lower border of the cricoid cartilage और फिर lower border of the cricoid cartilage से फिर हमारे साथ ट्रैकिया शुरू हो जाता है। MCQ number 5, the trachea is made up of 16 to 20 horseshoe shaped hyaline cartilages और ये इनकम्प्लीट होते हैं जो कार्टिलेज होते हैं। MCQ number 6, the expiratory center is formed by which regions of the medulla oblongata? It is formed by the dorsal and lateral portions। dorsal यानी पीछे and lateral means side वाला। MCQ number 7, a decrease of about 20% in oxygen concentration in the air results in doubling of the breathing rate। यानी हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर 20% वो कम होगी तो हमारा ब्रीथिंग रेट वो डबल हो जाएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। MCQ number 8, which of the following is not listed as a form of nitrogenous waste? The ammonia, urea, or uric acid. These are different forms of ammonia, or different forms of a nitrogenous waste. And creatinine, this is not a form of a nitrogenous waste in according to our textbook। MCQ number 9, which of the following correctly describes homeotherms? The homeotherms, they are warm-blooded animals, और warm-blooded animals की definition है कि they maintain a constant or nearly constant body temperature। MCQ number 10, how much of the glomerular filtrate is reabsorbed by the kidneys? तो ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन आपके जो ग्लोमेरुलस हैं उससे बहुत ज़्यादा, तकरीबन almost all of the plasma is filtered into the Bowman's capsule where it is called glomerular filtrate, और फिर glomerular filtrate 90% is reabsorbed in the proximal convoluted tubules। और वो कितना absorb होता है? तकरीबन out of 125 ml जो produce होता है 124 ml is reabsorbed। MCQ number 11, where are the renal corpuscles of juxtamedullary nephrons located? renal corpuscle यानी Bowman's capsule or glomerulus, so they are located in the deep in the cortex and close to the medulla। MCQ number 12, what type of epithelial cells form visceral layer of Bowman's capsule? Visceral layer, they are formed by podocytes
according to your textbook. MCQ number 13, the average weight of each human kidney is about 150 grams. MCQ number 14, what forms the tough flexible matrix of the cartilage? The cartilage में type 2 collagen होता है, जबकि bone में type 1 collagen होता है. MCQ number 15, which type of cartilage has the least cells and the most ground substance? तो सबसे कम सेल्स होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज में, क्योंकि सेल्स इसमें कम है, ग्राउंड सब्सटेंस इसमें ज़्यादा होता है. दिस इज द लीस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज में आपसे के साथ सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल्स उसमें ज़्यादा होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस उसमें कम होता है, तो दिस इज द मोस्ट इलास्टिक एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल. MCQ number 16, where is red bone marrow primarily located? The red bone marrow is primarily located in the cavities in the spongy bone. और मेड्यूलरी कैविटी में हमारे साथ येलो बोन मेरो होता है. MCQ number 17, which of the following is an example of cartilaginous joints between the vertebrae? MCQ number 18, which of the following is a non-striated muscle? Non-striated muscles हमारे साथ सिर्फ एक ही है, that is smooth muscle. बाकी skeletal और cardiac हमारे साथ striated हैं. MCQ number 19, what happens to the length of a sarcomere during muscle contraction? Length of a sarcomere decreases. Decreases हमारे साथ ऑप्शन सी में है, so C is the correct option. और इसकी वजह ये है कि जो थिक और थिन फिलामेंट्स है दे ओवरलैप, और ओवरलैपिंग की वजह से डेफिनेटली sarcomere की जो लेंथ है वो डिक्रीज होगी. MCQ number 20, in Drosophila the recombination frequency between BG and B is. तो इसमें डेफिनेटली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई फार्मूला है, ये आपने मेमोराइज करना होगा. मेरे ख्याल से आपकी टेक्स्ट में भी है और डायग्राम है उधर, उसमें भी है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 17. MCQ number 21, which of Mendel's laws has no exceptions? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं. लॉ ऑफ डोमिनेंस की बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, यानी को डोमिनेंस हो सकता है, ओवर डोमिनेंस हो सकता है, और इसी तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी एक्सेप्शन है, यानी जी लिंकेज. लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की कोई एक्सेप्शन नहीं है. MCQ number 22, हीमोफीलिया इज डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर इट कॉजेज प्रिवेंट्स प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग. MCQ और विजन तो मेरे ख्याल से उस एलोपोर्ट सिंड्रोम में इफेक्ट होती है. MCQ number 23, which eye color is dominant in Drosophila? In Drosophila, red eye color is dominant over white. MCQ number 24, the law of segregation is also called the law of purity of gametes. इसे law of purity of gametes इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गमीट्स बन जाते हैं सेग्रीगेशन के बाद उसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ अलील होता है, इस वजह से दे आर कंसिडर्ड प्योर. MCQ number 25, which four brain part regulates menstrual cycle? तो याद रखिए जितने भी होम्योस्टेसिस से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे काम हैं हाइपोथैलेमस के. So the correct option is option B. MCQ number 26, which neuron carries impulses between sensory and motor neurons? The sensory motor neurons में के दरमियान जो न्यूरॉन्स होते हैं वो है इंटरन्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं. MCQ number 27, during a depolarization the membrane becomes more permeable to depolarization to sodium. सोडियम अंदर आता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का इनसाइड जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है. और वैसे याद करने का आसान तरीका ये है कि सिर्फ डीपोलराइजेशन में सोडियम इन्वॉल्व है, बाकी जितने भी स्टेप्स हैं उसमें हमारे साथ पोटासियम इन्वॉल्व है. MCQ नंबर, और वैसे ऐसे एक MCQ इससे ज़रूर आता है, और इसको ऑन द याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये याद हो कि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और पोटासियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है. और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन या ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन मेम्ब्रेन की जो इनसाइड है दैट इज मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू द आउटसाइड. और ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन में हमें मेम्ब्रेन की इनसाइड को पॉजिटिव करना होता है. तो अब हमें एक ऐसा आयन चाहिए, आप खुद सोचें कि वो बाहर से आए और इसको ज़्यादा पॉजिटिव करें.
तो डेफिनेटली वो फिर सोडियम ही होगा। MCQ नंबर 28, स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in the seminiferous tubules। MCQ number 29, prostaglandins in semen helps in stimulating reverse peristalsis in the uterus, ताकि जो स्पर्म है that reaches the ampulla of the fallopian tube, और दूसरा का जो काम ये करता है it decreases the cervical mucus viscosity, यानी ऑप्शन सी, ताकि sperm can easily enter the uterus। MCQ number 30, which structure releases progesterone after ovulation? तो ovulation के बाद जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है that turns into the corpus luteum या corpus luteum, and the corpus luteum secretes progesterone, और ये तब तक प्रोजेस्ट्रॉन secrete करता रहेगा जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ये डीजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन हमारे साथ प्रोड्यूस नहीं होगा, और चूंकि प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है, जो फंक्शनल लेयर ऑफ द इंटरमीडियल है, दैट विल शेड अवे एंड दैट विल कॉज मेंसेस। MCQ number 31, syphilis is caused by, so syphilis is a sexually transmitted disease, an STD, and it is caused by Treponema pallidum। MCQ number 32, in gene therapy, when the normal gene is delivered directly into the body, this method is called, जब आप जीन को डायरेक्टली बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस करेंगे तो हम उसे इन वीवो कहेंगे, और बॉडी के बाहर करेंगे तो हम उसे एक्स वीवो कहेंगे या इन वीट्रो कहेंगे, जिस तरह हमारे साथ इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। MCQ नंबर से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 33, कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स, serological test using monoclonal antibodies take minutes, conventional methods they take a longer time, and these biotechnology approved methods they take a short time। MCQ number 34, interspecific struggle refers to, inter yani between, so this refers to struggle between organisms of different species, between different species। MCQ number 35, the publication of Darwin's book was catalyzed by, Alfred Wallace। Alfred Wallace डार्विन का एक दोस्त था, और वो ये भी पहुंचा था नेचुरल सिलेक्शन की थियरी पर, तो उसने डार्विन को खत लिखा कि भाईजान इस तरह नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो डार्विन डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे पहले अपनी किताब को, अपनी इस थियरी को पब्लिश करे और सारा क्रेडिट इसे मिल जाए। तो डार्विन पहले हो गया, तो इसलिए आज अक्सर किताबों में से डार्विन वैलेस थियरी कहते हैं, लेकिन फिर भी अब वैलेस चूंकि सेकंड था पब्लिकेशन में, तो इसलिए वैलेस का नाम अक्सर हम भूल चुके हैं, और डार्विन का नाम सबको याद है, हर जगह डार्विन ही डार्विन का शोर है। MCQ नंबर 36, who appointed Darwin as a naturalist on HMS Beagle? तो HMS Beagle, this was a ship, and इसका काम ये था to prepare navigation charts for the British Navy, His Majesty's ship, and Darwin, he was the graduate of Cambridge, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हेंसलो, इसने डार्विन को कहा कि डार्विन मेरी जगह इस शिप में एक नेचुरलिस्ट की बतौर काम करेगा। MCQ number 37, which semilunar valve is located at the exit of the right ventricle? तो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज की एंट्रेंस में या राइट वेंट्रिकल्स की एंट्रेंस की एग्जिट में यहाँ पर जो वॉल्व्स लगे हैं दैट इज कॉल्ड दी पल्मोनरी वॉल्व। और अगर आपसे कहा जाए कि एंट्रेंस पर कौन से वॉल्व्स लगे हैं, तो देन द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। MCQ number 38, which scientist first described lymphatic ducts in the livers? That was Aulus Rudbeck. Option C. MCQ number 39, what is the function of lymph nodes in the immune system? It filters your blood, or filters your lymph, to be more precise। MCQ number 40, into which veins do the thoracic duct and the right lymphatic duct drain lymph? They drain into the subclavian veins। This is a really high yield MCQ, बहुत important है ये वाला MCQ। MCQ number 41, what is the average blood pressure in the human arteries? तो arteries में प्रेशर ज़्यादा होता है as compared to veins,
वेंस में कम होता है अराउंड अबाउट 20 मिलीग्राम मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन आर्टरीज में ज़्यादा होता है अराउंड अबाउट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एमसीक्यू नंबर 42, व्हाट सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया? राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बहुत ही आसान है। एमसीक्यू नंबर 43, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सिंगल कार्डियक साइकिल? A single cardiac cycle lasts for about 0.8 seconds. MCQ number 44, what is another name for antibody mediated immune response? Antibody mediated immune response को भी humoral immunity भी कहते हैं। And antibody mediated immune response, this is because of B cells, और जो cell mediated immunity है that is because of T cells। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? पहली बात तो ये कि आर्टिफिशियल है यानी नेचुरल तरीक़े से नहीं है, तो पासिंग फ्रॉम मदर टू चाइल्ड दिस इज नेचुरल तरीक़ा है, आर्टिफिशियल नहीं है। obtained थ्रू इंजेक्शन ये आर्टिफिशियल तरीक़ा है। एंटीबॉडीज मेड आफ्टर इन्फेक्शन ये नेचुरल तरीका है। इम्यूनिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन, तो हमारे साथ आर्टिफिशियल जो है वो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। लेकिन फिर आगे क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी यानी तैयार एंटीबॉडीज़ उन्हें नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में तैयार एंटीबॉडीज़ हमें दी गई है, पैसिव तरीका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन डी में पहले वैक्सीनेशन होगी और वैक्सीनेशन के ज़रिए फिर हमारे साथ एंटीबॉडीज़ बनेगी, जो कि बॉडी खुद चूँकि एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो ये एक्टिव तरीका है। सो ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन बी ठीक है। एमसीक्यू नंबर 46, हाउ इज़ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मोस्ट कॉमनली ट्रांसफर? नेचुरल है, नेचुरल हमारे साथ वैक्सीनेशन नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हमारे साथ नेचुरल नहीं है। मेमोरी सेल्स नेचुरल है, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क ये भी नेचुरल है। पैसिव भी हो तो दैट इज ऑप्शन सी। मेमोरी सेल्स में तो ये है कि बॉडी खुद मेमोरी सेल्स से एंटीबॉडीज बनाएगी अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी सेल्स, तो ये एक्टिव हो गया। ऑप्शन सी हमारे साथ पैसिव भी है और नेचुरल भी है, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 47, how many polypeptide chains are present in one antibody molecule? So the correct option is option C 4। इसमें हमारे साथ 2 लाइट चेन्स होती है और 2 हैवी चेन्स होती है। MCQ नंबर 48, चीफ सेल्स सेक्रीट चीफ सेल्स दे सेक्रीट HCl। वैसे याद रखने का तरीका ये है कि चीफ सेल्स में C आता है और HCl में भी C आता है। और दूसरे हमारे साथ पैराइटल सेल्स होते हैं और P पर पैराइटल। नो आई एम रियली सॉरी। याद रखने का तरीका ये, करेक्ट ऑप्शन इज और हियर इज ऑप्शन बी पेप्सिनोजन। और याद रखने का तरीका ये है कि चीफ सेल्स दे सेक्रीट, जो हमारे साथ दूसरी पैराइटल सेल्स हैं दे सेक्रीट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वजह से हमारा H4 हाइड्रोजन एंड H4 HCl। दिस वाज द रियल निमोनिक की वजह से मैंने MCQ भी मुझसे गलत हो गया। सो एग्ज़ाम में भी आप कोशिश करें कि इस बात का ख्याल रखें कि आप मेरी तरह एक्साइटेड हो जाए कि तो निमोनिक से होता है और ग़लत ऑप्शन को टिक कर दें। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पैराइटल सेल्स HCl सीक्रेट करते हैं और आपके जो चीफ सेल्स है दे सीक्रेट पेप्सिनोजन व्हिच इज देन लेटर कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। MCQ number 49, what is the approximate volume of an empty stomach? Approximate volume of an empty stomach is 50 ml. MCQ number 50, lingual aphasia is secreted by lingual Abner's gland lying on the dorsal surface of the tongue. MCQ number 51, which enzyme activates trypsinogen into trypsin? तो ये काम है एंटेरोकाइनेज का, ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, और फिर ट्रिप्सिन बाकी जो एंजाइम्स है हमारे साथ, जो बाकी जो डोडीनल एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट कर लेता है। MCQ number 52, which substance is in pancreatic juice neutralizes the acidity of chyme into duodenum? तो ये काम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। MCQ number 53, how many molecules of FADH2 are produced per turn of the Krebs cycle? तो एक टर्न ऑफ द Krebs साइकिल में हमारे साथ सिर्फ एक FADH2 मॉलिक्यूल बनता है, और चूँकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए Krebs साइकिल हमारे साथ 2 मरतबा होता है, तो थ्रू आउट सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे साथ टोटल 2 FADH2 बनते हैं।
MCQ number 54. During aerobic respiration, glucose is oxidized to carbon dioxide and water, and energy is released. बाकी ऑप्शंस जो है they don't make any sense, they are not related to respiration. MCQ number 55. A compound found in every living cell and is one of the essential chemicals of life. It plays a key role in most biological energy transformation. It is ATP, definitely. MCQ number 56. ATP molecules are generated during which steps of glycolysis? During it, so this happens during the 7th and 10th steps. और इसको आपने बिल्कुल रट्टा करना होगा. जिन स्टेप्स में आपके साथ ATP बनता है, जिन स्टेप्स में आपके साथ वाटर बनता है, जिन स्टेप्स में आपके साथ NADH2 बनता है, वो अपने लिए अलग एक पेज पर लिख के और उससे रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे. अब भी अगर किसी का रट्टा कमज़ोर है, तो अब भी 1 महीना बाकी है. एक मंथ में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ याद कर सकते हैं. MCQ number 57. The product of second step of glycolysis is, that is fructose 6-phosphate. First step में हमारे साथ glucose 6-phosphate बनता है और second step में glucose 6-phosphate is isomerized into option C, यानी fructose 6-phosphate. MCQ number 58. The most common mode of AIDS transmission is, that is through sexual contact. MCQ number 59. A virus particle consists of nucleic acid core surrounded by a protein capsid. The correct option is option A. MCQ number 60. The protein subunits make the protein code of viruses is, they are called capsomeres. MCQ number 61. CD4 receptors bearing T lymphocytes is infected by HIV, human immunodeficiency virus. CD4 cells कहते हैं helper T cells को, और helper T cells को हमारे इन्फेक्ट करता है HIV. MCQ number 62. Human immunodeficiency virus causes AIDS, यानी acquired immunodeficiency syndrome. MCQ number 63. Which proteins form the core of HIV? They are formed by protein 17 and protein 24. 17 और 24 जो है ये इन प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट है, यानी proteins of molecular weight 17 kilodaltons and 24 kilodaltons. MCQ number 64. Which derived lipid is a precursor of all steroid hormones? So cholesterol is a precursor of all steroid hormones. MCQ number 65. The band involved in the primary structure of protein R. इसमें इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड्स, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे साथ सिर्फ अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है और अमीनो एसिड्स आपको पता है दे आर बाउंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. MCQ number 66. The most abundant organic compound to be found in the cells are. सो उनके ऑर्गेनिक का पूछा है तो दैट इज प्रोटीन्स. अगर सिर्फ ऑर्गेनिक स्पेसिफाई नहीं किया होता, सिर्फ कंपाउंड का पूछा होता, तो फिर हमारे साथ वाटर होता. लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक स्पेसिफाई किया है तो हमारे साथ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोटीन. MCQ number 67. The catalytically active form of an enzyme is called, it is called a holoenzyme. And the protein part of an enzyme is called apoenzyme. Enzymogen is the inactive form of an enzyme, and coenzyme is a type of cofactor. MCQ number 68. Which statement about pH and enzyme activity is correct? All enzyme work best at 7. नहीं. Each enzyme has its own optimum pH. ये बात बिल्कुल सही है. enzyme activity at optimum pH नहीं. Lower pH always increase enzyme activity नहीं. So यहाँ पर जो correct option is option B. MCQ number 69. Without hydrogen bonds, water would boil at dash and would freeze at dash. So without hydrogen bonds, water की जो boiling point है वो काफ़ी कम होगी. The correct option over here is option A, -80. ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल गलत है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है ए और बी में. तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से या फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है, चूँकि -80 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू -100. Therefore, -80 is the boiling point and -100 is the freezing point. So option A हमारे साथ correct है. MCQ number 70. The most complex and the most abundant carbohydrates in nature are, they are polysaccharides. हमने सुना होगा कि cellulose is the most abundant carbohydrate in nature. So cellulose क्या है? वो polysaccharide है. MCQ number 71. Hemoglobin consists of 4 polypeptide chains. तो हमारे साथ अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं, और हर
पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक पोरफायरिन रिंग हो, एक आयरन मॉलिक्यूल होता है। एमसीक्यू नंबर देयरफॉर ए सिंगल hemoglobin has the oxygen carrying capacity of 4 molecules. MCQ number 72, maltose yields dash upon hydrolysis. Maltose yields 2 molecules of glucose. ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट है। ये एमसीक्यू बहुत ही हाई हील्ड है। इस चैप्टर से अगर आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस है कि सक्रोज की हाइड्रोलिसिस हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, और लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस हमें हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, और माल्टोज की हाइड्रोलिसिस हमें ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है। MCQ number 73, no, the non-protein part of the enzyme is metallic ion, it is called a prosthetic group. MCQ number 74, inhibitors can be divided into two basic types. क्योंकि MCQ बायो के पोर्शन में आया है तो आपने टू बेसिक टाइप्स क्लिक करना है, लेकिन अगर ये सेम MCQ केमिस्ट्री के पोर्शन में आए तो फिर करेक्ट ऑप्शन 3 बेसिक टाइप होगा। MCQ number 75, optimum pH for the action of pancreatic lipase is, it is option D 8. जितनी भी pancreatic lipase है they are active, more active at a more alkaline optimal pH, तो इसमें है सिर्फ एक ही alkaline value and that is 8. MCQ number 76, in a cell ready to divide chromosome has dash DNA molecules. It has two identical DNA molecules. एक chromatid में एक is a single DNA molecule. तो चूंकि रेप्लिकेशन सेल डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है तो इसलिए उसमें टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। MCQ number 77, in acrocentric chromosome the centromere is located in located near the end. अगर बिल्कुल एंड में लोकेटेड होगा तो फिर उसे हम टेलोसेंट्रिक कहेंगे, अगर सेंटर में तो फिर तो आसान है मेटासेंट्रिक, नियर द सेंटर तो फिर सब मेटासेंट्रिक। MCQ number 78, which of these has a haploid number of 12? हैप्लॉइड यानी आधा, तो डिप्लॉइड 24 हमारे साथ, टोमेटो में हमारे साथ 24 क्रोमोसोम्स होते हैं 24, तो इसका डिप्लॉइड नंबर 24 है और हैप्लॉइड नंबर इसका 12 है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। MCQ नंबर 80, द बैक्टीरियल स्लॉट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। MCQ number 81, mitochondria were first seen in muscle cells as tiny granules. So this was the second last test of this FLP series. If you have any more questions, feel free to ask. Feel free to reach out through WhatsApp. बाकी comments वगैरह हम ज़्यादा नहीं देखते तो WhatsApp पर आप पूछ सकते हैं definitely. As always, see you next time. Wassalam.